नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا، مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں، مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ اسمبلی اجلاس کے 7ویں دن کئی اہم مسائل پر تبادلہ خیال۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے تمام اراکین کو ماسک و محفوظ فاصلے پر پابندی کی دی ہدایت۔ ریاست میں ڈیری شعبے کی ترقی کے لیے پی او سی کمیٹی چیئرمین و آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے کی اسمبلی اجلاس میں نمائندگی۔ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار اور یہی تہذیب تلنگانہ کی ہے۔ جنگم پیٹ میں مسجد کی تعمیر اشعار کی جانب سے روکنے پر جمعیت العلماء صدر حافظ لائق خان کی جانب سے بودن رکن اسمبلی شکیل عامر سے ملاقات پر رکن اسمبلی نے دیا جواب، عہدیداروں کو دی ہدایت۔ نظام آباد سرکاری ہاسپٹل عملے کی کمی کو دور کرنے و کورونا مریضوں کے لیے خانگی ہاسپٹلز کی طرز پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے نظام آباد رکن اسمبلی بیگالا کنج گپتا نے کی اسمبلی اجلاس میں نمائندگی۔ نظام آباد کو مثالی شہر بنانے کے لیے رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا کوشاں میئر نیتو کرن و ڈپٹی میئر ادریس خان نے شہر کے مختلف ڈویژنز میں رکھا ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد۔ جانگن پیٹ میں مسجد کی تعمیر کو روکنے کے خلاف جمعیت العلماء صدر حافظ لائق خان کی رکن اسمبلی شکیل عامر سے ملاقات و نمائندگی۔ رکن اسمبلی کی جانب سے عہدیداروں کو جمہوریت کو برقرار رکھتے ہوئے کام کرنے کی دی ہدایت، بصورت دیگر سخت کارروائی کا دیا انتباہ۔ صدر و اراکین جمعیت نے عہدیداروں سے کی ملاقات، فرقہ پرستوں کی شرارت پر قانونی کارروائی کا دیا انتباہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کی تعمیر کرنا یا تعمیری کاموں میں حصہ لینا وہ سب نصیب والوں کے حق میں ہوتے ہیں، اور اسی ثواب کی نیت کے ساتھ ایک صاحب نصاب شخص نے بودن حلقے اسمبلی کے منڈل جنگم پیٹ میں ایک لے آؤٹ کالونی میں موجود اراضی کو مسجد کے لیے وقف کیا، لیکن مقامی فرقہ پرست جن کی دماغوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے مسجد کی تعمیر کو روکنے پر جمعیت العلماء صدر حافظ لائق خان کی جانب سے مقامی ایم ایل اے شکیل عامر سے ملاقات کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور رکن اسمبلی شکیل عامر کی جانب سے مقامی سرپنچ و سیکریٹری کے ساتھ ساتھ مسجد کے لیے اجازت دینے کے لیے ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر کو بھی ہدایت دی، اور آج ڈی پی او سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے تمام مسائل کی سنجیدگی سے واقف کروایا۔ اس موقع پر صدر جمعیت العلماء حافظ لائق خان نے رکن اسمبلی شکیل عامر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر میں خلل ڈالنے والے فرقہ پرست عناصر کو باز آنے کی ہدایت دی، بصورت دیگر قانونی کارروائی کیے جانے کا انتباہ دیا۔ رکن اسمبلی بودھن جناب شکیل عامر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے سرپنچ صاحب اور وہاں کے گاؤں کے سیکریٹری صاحب اور اسی طرح ڈی پی او ڈسٹرکٹ پلاننگ پنچایت آفیسر سے بات کیے ہیں، وہ اس میں بہت مسجد انتظامیہ کمیٹی کا اور جمعیت کا گراں قدر تعاون کر رہے ہیں۔ میں ان کا بھی جمعیت علماء کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کے لیے وقف کیا، لیکن کچھ وہاں پر فرقہ پرست عناصر مسجد کی تعمیر کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جانکم پیٹ چونکہ بودن حلقے میں آتا ہے، وہاں کے حلقے اسمبلی کے
MLA जनाब शकील आमिर साहब से हमने मुलाकात की और इसकी नुमाइंदगी की है, जिस पर उन्होंने जानकमपेट के सरपंच और वहाँ के सेक्रेटरी को भी बात किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर DPO साहब से भी उन्होंने फ़ोन पर बात की और हमसे कहा कि उनसे जाकर मिले और DPO साहब से बहुत ही उन्होंने सख्त अंदाज। डिवीजन 31 ऑटोनगर को मिसाली डिवीजन बनाया जाएगा। हर गली में सड़क व नालियों की तामीर की जाएगी। अवाम ताउन करे। डिवीजन 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इनकी नुमाइंदगी पर मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इद्रिस खान के हाथों तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। बारिश के सबब शहर के कई इलाका खस्ता हाल हो चुके थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रुकने असम्बली पीगाला गणेश गुप्ता की हिदायत पर शहर के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती कामों की शुरुआत की गई। इसी तरह डिवीजन 31 में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने डिवीज़न के दौरा करते हुए अवामी राय के मुताबिक इलाके की हालात व तरक्की याफ्ता कामों की तफसीलात को महकमे बल्दिया को हवाले की, जिसके मद्देनज़र एक बार एक तरक्की याफ्ता कामों का आज से आगाज़ हुआ। इन कामों का शहर के मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ऑटोनगर की जो हालात आज है वो अनकरीब तब्दील हो जाएंगे और आवाम की सहूलत के लिए सड़कें व नालियों की तामीर एक के बाद एक अमल में लाई जाएगी और कोरोना वबा से जिन कामों पर असर हुआ है वो भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। आवाम सब्र से काम ले, साबिका कॉरपोरेटर्स से भी ज़्यादा फंड्स लाते हुए इलाके को तरक्की दी जाएगी। इस तकरीब के आगाज़ के मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व मोहल्ले की मुअज़्ज़िज़ अफराद की जानिब से मेयर, डिप्टी मेयर व तमाम कॉर्पोरेटर्स की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मजलिसी फ्लो लीडर शकील फाजिल, मोहम्मद मुस्तहसिन, एजाज, अरशद पाशा, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन के अलावा मकामी बुजुर्ग क़य्यूम कुरैशी, मौलाना अलीम, जफ़र खान, आरिफ किराना, यूसुफ व दीगर मौजूद थे। कॉर्पोरेशन में जनरल फंड के तहत डिवीज़न नंबर 52 और 57 और 51 और 31 डिवीज़न का इनाग्रेशन मेयर मैडम और डिप्टी मेयर की मौजूदगी में इनेकाद अमल में लाया। इसके लिए हम मेयर मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ निज़ामाबाद की आवाम से ये वादा करते हैं कि निज़ामाबाद की हर महल्ले की तरक्की के लिए हम जीत जोड़ जान मेहनत करेंगे। हम हमारे अर्बन MLA जनाब पीगाला गणेश गुप्ता साहब के साथ और पूरी काउंसिल एकजुट होकर अच्छे से अच्छा निज़ामाबाद की तरक्की के लिए हम काम करेंगे, हम ये वादा करते हैं। 16 अक्टूबर से बदकमा तकारीब साबिका MP के कविता क़यादत करेंगे। रियासत तेलंगाना में हर साल की तरह इस साल भी बदकमा तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सदर तेलंगाना जागृति के कविता की ज़ेर क़यादत 16 ता 24 अक्टूबर बदकमा तकारीब मुनक़िद की जाएगी। कोरोना वायरस के चलते क्या बदकमा तकारीब को आम मुकामात पर मुनक़िद किया जाएगा? ये महदूद अंदाज में मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में भी अभी कोई वजाहत नहीं की गई, लेकिन ये बात तय है कि हर साल की तरह इस साल भी साबिक़ रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद की कविता तेलंगाना जागृति सदर की हैसियत से रियासत तेलंगाना के सरकारी त्यौहार बदकमा के बड़े पैमाने पर इनेकाद का जहन बना लिया है और सारे अजला में बदकमा साड़ियाँ तकसीम की जाएगी। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। ప్రతి సంవత్సరం మనందరం ఎంతో ప్రేమగా ఆప్యాయంగా జరుపుకునేటటువంటి బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణకే తలమానికంగా నిలిచేటటువంటి సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే। ఈ సంవత్సరం అధిక మాసం రావడం వల్ల లీప్ ఇయర్ కాబట్టి ఒక నెల రోజులు సమయాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకునేటటువంటి సందర్భంలో అధిక మాసం వస్తుంది। వచ్చినటువంటి సందర్భంలో పండుగలన్నిటికీ కూడా కొద్దిగా తేదీలు ఒక రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది। అందుకనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ విద్వత్ సభ మన తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి మహామహనీయులందరూ కూడా కూర్చొని, వేద పండితులందరూ కూడా కూర్చొని ఈ సంవత్సర కాలం వచ్చేటటువంటి పండుగలు వాటి తేదీలు తిథుల ప్రకారం శాస్త్ర ప్రకారం నిర్ణయం చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం వచ్చినటువంటి అధిక మాసాన్ని కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం లాగా భాద్రపద మాసంలో కాకుండా ఆ పై నెల ఆశ్వయుజ మాసంలో అంటే అక్టోబర్ నెలలో 16వ తారీఖు నాడు ప్రారంభం చేసుకొని బతుకమ్మను మనం 9 రోజులు ఎప్పుడు చేసుకున్నట్టుగానే ఘనంగా చేసుకునే విధంగా ఈసారి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది।
అయితే భాద్రపద మాసంలో వచ్చేటటువంటి ఎంగిల్పూల అమావాస్య నాడు మనం బతుకమ్మ చేద్దాము అని కొంతమంది ప్రతిపాదన చేసిండ్రు. అయితే చేసినట్టయితే ఏముంటుందంటే మొదటి రోజు మనందరం కూడా ఆడబిడ్డలకు తెలుసు గౌరమ్మను చేసుకుంటాం. మరి చేసుకున్న గౌరమ్మకు నెల రోజులు పూజలు చేసే ఓపిక ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ రోజు చేసుకొని నెల రోజులు కూడా పూజ చేసుకొని మళ్ళా అక్టోబర్లో వచ్చే దుర్గాష్టమి నాడు మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మొదలుపెట్టి పూజలు చేయకుండా ఉండడం అన్నది సరైన విషయం కాదు అని వేద పండితులందరూ చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి వేద పండితులందరి యొక్క సలహా సూచన మేరకు తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ మరి బతుకమ్మ పండుగను చాలా సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఎంతోమంది మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినారు. మేము పండితులందరినీ కూడా విద్వత్ సభ వారిని అడిగిన మేర వారిచ్చినటువంటి సూచన ఏమంటే అక్టోబర్ 16 నుంచి పండుగ మొదలు పెట్టుకొని అక్టోబర్ 24 వరకు చేసుకుంటే సరైన రీతిలో ఉంటుంది. ప్రతి 19 సంవత్సరాలకు ఇటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుంది. नौजवान मजलिस कॉरपोरेटर अली बागबान के डिवीजन में बिला लिहाज मजहब व मिलत इंतखाबी वादे के मुतालिक तरक्याती कामों का आगाज मेयर निदु किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने रखा संगे बुनियाद। शहर का इलाका डिवीजन 51 मोहल्ला बरकतपुरा बरोडगी व दीगर इलाका जिसके हुदूद में आते हैं। इस इलाके में यूँ तो काफ़ी मसाइल दरपेश है जिसको नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान ओहदे का जायज़ा लेने के बाद हल करने में मसरूफ़ है। लेकिन अवाम को सहूलत फ्राहम करने के लिए सड़कों व नालियों की तामीर के लिए फंड्स ना होने पर इनकी जानिब से महकमे बल्दिया कमिश्नर को इनके इलाके के मसाइल से वाकिफ़ियत करवाते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई और आज मेयर निदु किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों इन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस तकरीब में मजलिसी फ्लो लीडर शकील अहमद, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन व मुकामी बुजुर्ग मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद बाबर, मोहम्मद मोइन, अब्दुल नईम, इमाम व खतीब मस्जिद अबू बकर, रिजवान, तौफीक व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 51 में 10 लाख रुपए की लागत से जो डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है, कलवर्ट है इसमें और 3 सीसी रोड है। मैं तहे दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी साथ साथ अर्बन एमएलए जनाब दीगाला गणेश गुप्ता साहब, मेयर मैडम नीतू किरण साहब और हमारे आली जनाब डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, टाउन सदर शकील साहब का भी तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा। जिले के उलमा हुफ़ाज़ इकराम की जमीयतुल उलमा दफ्तर पर रुकने साजी तकरीब तमाम मेंबरान साबिक़ा सदर जमीयतुल उलमा जिला हजरत सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए कौम व मिलत के लिए अजीम कारनामे अंजाम दे। शुरका का खिताब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि आज शहर के कई उलमा इकराम ने व हुफ़ाज़ अज़्ज़ाम ने दफ्तर जमीयतुल उलमा वाक़ई बोधन रोड निज़ामाबाद पहुँचकर जमीयतुल उलमा में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार करते हुए साबिक़ सदर मरहूम मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी और जमीयतुल उलमा हिंद के बेलोस खादिम नाजिम इमारत शरियाए हिंद हज़रत मौलाना मुआज़ुद्दीन कासमी साहब के लिए कुरान ख़वानी की और ईसाल सवाब व दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया। मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर कासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा पेरकिट ने मौलाना वलीउल्लाह कासमी साहब के चंद एक औसाफ व कमालात पर रोशनी डालते हुए इनके नक्शे कदम पर चलने और इनके मिशन व फ़िक्र को सामने रख कर काम करने की तरग़ीब दी। इस मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए मौलाना शाकिर कासमी ने बताया कि जमीयतुल उलमा हिंद अपनी एक 100 साल तारीख़ और पहचान रखती है जो अपने अजीम और मिसाली कारनामों की वजह से पूरी दुनिया बतौर ख़ास हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मारूफ है। शहर निज़ामाबाद में मिली फलाही और दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए मौलाना मरहूम के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस राह में आने वाली हर मुश्किल का आपसी इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ मिलजुल कर हल तलाश करके मुख्तलिफ मुहाज़ों पर काम का आगाज़ किया जाएगा। घर घर जमीयत हर घर जमीयत का नारा लगाकर इस्लाम मुसलमान और शुआर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर इंसानी इक़दार पर कौम व मिलत की खिदमत करे। सैयद समीउल्लाह अली नाज़िम मदरसा मज़हरुल उलूम इमाम व खतीब मक्का मस्जिद ने इन नौजवान उलमा का खैर मकदम करते हुए मुबारकबाद दी कि जिन्होंने मौलाना मरहूम के मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किया और बाकायदा जमीयत के इस्तेहकाम के लिए मुत्तहद हुए। हमें इसी तरह की फ़िक्र लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि
دور حاضر میں تو باطل عقائد و نظریات والے فتنوں سے مقابلہ کرنا اور حقائق حق کے لیے کوشاں رہنا ہمارا دینی ملی اور مذہبی فریضہ ہے۔ حوصلہ ہو تو راستے بھی منزل بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر مولانا سید سمیع اللہ، مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی، مفتی مبین قاسمی، مولانا ثناء اللہ مظہری، مولانا یاسر اویس قاسمی، مولانا اعجاز قاسمی، مولانا قمر الدین قاسمی، مولانا الماس قاسمی، مولانا زبیر بن قلمت، مولانا عبدالکریم قاسمی، حافظ عبدالولی، مولانا الیاس، مولانا فاضل حافظ، مجاہد حافظ، اس کے علاوہ جمعیت کی قدام و دیگر احباب نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے مولانا سید ولی اللہ قاسمی کو ایصال ثواب آپ کی مختلف الجہات خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور جمعیت العلماء سے وابستگی کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ ہم سے جمعیت کا ایسا کام لے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جمعیت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ دینی اور مذہبی، اسلامی اور جن کے مساجد، معابد، یہ سب چیزوں کے تحفظ اور ملک کے اندر امن و امان کی برقراری اور ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنے والی جماعت ہے، جو عین ہمارے نزدیک دین ہے، اور ہم اس کو دین کا ہی کام سمجھتے ہیں، اور اسی کام کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب کی فکروں کو لے کر آگے چلنا پڑے۔ آپ سب حضرات کا ایک بہت بڑا اعزاز مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ سب نے حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض ضرور حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات طلبہ رہے، پڑھنے کا زمانہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جائیداد ٹیکس کی وصولی ون ٹائم سیٹلمنٹ پروگرام کی 45 دنوں تک توسیع، KTR کا اعلان، بلدی کمشنرز میئرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارکا راما راؤ نے جائیداد ٹیکس کی وصولی سے متعلق ون ٹائم سیٹلمنٹ پروگرام کو مزید 45 دن تک توسیع دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج ریاست بھر کے میونسپل کمشنرز، میئرز، بلدیہ کے کمشنرز، صدر نشین، ایڈیشنل کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے بلدیات اور کارپوریشنوں میں زیر التوا کاموں کو جلد از جلد مکمل کر لینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کے موقع پر سوچھتا ڈے منانے کا اعلان کیا۔ وزیر موصوف نے کہا ہے کہ شہری علاقوں میں صاف صفائی کے کاموں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ 2 اکتوبر تک گاندھی جینتی کے موقع پر بلدیات اور کارپوریشنوں میں ٹوائلٹس کی تعمیری کاموں کو مکمل کر لیا جائے۔ شہری علاقوں میں نم اور سوکھی کچرے کو علیحدہ کرنے کے پروگرام کو بڑے پیمانے پر انجام دیا جائے۔ اس کے علاوہ ویسٹ مینجمنٹ کی انجام دہی میں خصوصی توجہ دی جائے۔ KT راما راؤ نے کمپوسٹنگ اور ڈرائی ریزرو کلیکٹنگ سینٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ تلنگانہ میں 1417 نئے کورونا کیسز، 13 اموات، ٹیسٹوں کی تعداد میں کمی، کیسوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا ٹیسٹوں کی تعداد معمول سے نصف کر دی گئی، جس کے نتیجے میں پازیٹیو کیسوں کی تعداد درج ہوئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت سے ہفتہ اور اتوار کی تفصیلات پر مشتمل جاری بلیٹن کے مطابق 1417 نئے کیس درج ہوئے، جبکہ 13 اموات ہوئی ہیں۔ ریاست میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,58,513 ہو گئی، جبکہ اموات 974 ہوئی ہے۔ 2,479 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ پازیٹیو کیس کی تعداد 30,532 ہے۔ ان میں 23,639 مریض ہوم آئسولیشن کے تحت زیر علاج ہے۔ گزشتہ دنوں میں 34,427 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 825 کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ واضح ہے کہ حکومت نے روزانہ 60,000 سے زائد ٹیسٹوں کا نشانہ مقرر کیا ہے، لیکن ہفتہ اور اتوار کو ٹیسٹوں کی تعداد معمول سے 50% کم درج کی گئی، لیکن اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں کورونا کیسز میں بدستور اضافہ حکام کے لیے تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 264 نئے کیس درج ہوئے ہیں، جبکہ رنگا ریڈی میں 133 کورونا کیس منظر عام پر آئے۔
कोरोना से मुतासर होने वालों में 70% से ज़ायद की उम्र 20 تا 50 साल के दरमियान है। अजला में जगतियाल 34, करीमनगर 108, खम्मम 37, महबूब नगर 34, महबूबाबाद 54, मलकाश्री 25, नागर कर्नूल 32, नलगोंडा 47, निजामाबाद 67, पेद्दापल्ली 39, रंगारेड्डी 133, संगारेड्डी 107, सिद्दीपेट 75, सूर्यापेट 34, वरंगल अर्बन 70 और भोंगीर में 23 केसेस दर्ज किए गए। हुकूमत के लारे स्कीम अक़लियती आबादी वाले इलाकों में भारी फीस, कई अराजी फरोख्त, रेगुलराइजेशन में दुश्वारियां, सियासी सरपरस्ती में अराजी फरोख्त करने वाले अब लाताल्लुक़। हुकूमत ने गैर मजाज लेआउट्स और प्लाट्स को बाकायदा बनाने की स्कीम से इस्तेफादे के लिए 15 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में दरख्वास्तों की तादाद तवक्को के मुताबिक नहीं रही। अराजी के कारोबार में सियासतदानों और इनके करीबी अफराद की शमूलियत के नतीजे में ज़्यादातर वेंचर्स लेआउट की मंजूरी के बगैर ही फरोख्त कर दिए गए। अवाम को दिलकश स्कीमात और तरगीबात के ज़रिए प्लाट्स की खरीदी के लिए राग़िब किया गया। कई वेंचर्स में इक़साद पर रकूमात हासिल की गई। इस तरह गैर मजाज और गैर मंजूरा लेआउट्स पर शहर के लाखों मकानात तामीर हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में 15 लाख ऐसे मकानात हैं जो लेआउट्स की मंजूरी के बगैर ही तामीर किए गए और रजिस्ट्रेशन के बजाय नोटरीज डॉक्यूमेंट पर कारोबार किया गया। हुकूमत ने गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने की कोई स्कीम जारी नहीं की है। ताहम लेआउट्स और प्लाट्स को बाकायदा बनाने के लिए मार्केट वैल्यू के मुताबिक चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नए शहर के इलाकों में लेआउट्स मंजूरा अराजियात फरोख्त की गई, जबकि पुराना शहर और दीगर अक़लियती आबादी वाले इलाकों में लेआउट्स के बगैर ही अराजियात को फरोख्त किया गया। खलीजी ममालिक में बरसर रोजगार अफराद ने सरमायाकारी करते हुए अराजी हासिल की ताकि वापसी की सूरत में असासा बरकरार रहे। पोचमपाड़ लबरेज 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं। रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से ज़िला निज़ामाबाद के अहम आबी ज़खायर में शामिल श्री राम सागर पोचमपाड़ प्रोजेक्ट पानी से लबरेज हो चुका है। प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों से 25,000 क्यूसेक्स पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोल दिए गए, जिससे पानी छोड़ा जा रहा है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने आइंदा दिनों में मूसलाधार बारिश की पेश क़ियासी की है। प्रोजेक्ट में पानी के ज़बरदस्त इनफ्लो को मद्देनजर रखते हुए ओहदेदारों ने 8 दरवाजे खोलने का फैसला किया है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोल दिए जाने पर प्रोजेक्ट का नज़ारा करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। निजामाबाद जिले में कोरोना के 68 ताज़ा केसेस। निजामाबाद जिले में कोरोना वायरस के मजीद 68 नए मामला दर्ज हुए हैं। जिला तिब व सेहत महकमे के ओहदेदारों की बमौजिब जिले में ताहाल 9,102 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 5,078 एक्टिव केस शामिल है। ताहाल इलाज के बाद 3,890 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। अलावाजी जिले में ताहाल कोरोना से 134 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। जिले के बोधन में 7, नवीपेट में 3, रेंजल में 1, कमरपल्ली में 3, भीमगल में 4, वेलपुर में 2, किसान नगर में 3, डिशपल्ली में 4, सिरकुंडा में 2 मुस्बित केसों के दर्ज होने के अलावा निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर्स में मुस्बित केस दर्ज हुए हैं, जिनमें कमसन बच्चे, ज़ईफ़ अफराद भी शामिल है। 30 अरकान पार्लियामेंट कोविड से मुतासिर। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी और प्रवेश वर्मा की बमशमूल तकरीबन 30 अरकान पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के 50 से ज़ायद मुलाजमीन अब तक कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए हैं। ज़राए ने आज ये बात बताई। मानसून सेशन के आगाज से कबल पार्लियामेंट के अहाते में लाजमी कोरोना वायरस टेस्ट के दौरान इनमें से 20 मुस्बित पाए गए, जबकि कई ने अपने अपने हलकों में टेस्ट करवाए। तमाम अरकान पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीट के अमले का मानसून सेशन शुरू होने से कबल लाजमी कोविड टेस्ट करवाया गया। पार्लियामेंट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों का भी टेस्ट हुआ और कम अज कम एक रिपोर्टर मुस्बित पाया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ट्विटर पर बताया कि ICMR को पार्लियामेंट के
2500 से ज्यादा नमूनों की जांच का एजाज हासिल है। पार्लियामेंट ओहदेदारों के पास दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 30 अरकान पार्लियामेंट और 50 से जायद मुलाजमीन कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए हैं। मुस्बित पाए गए अफराद से कहा गया कि वो क्वारंटाइन में रहें और पार्लियामेंट में न आए। पार्लियामेंट सेशन पीर को शुरू हुआ जो अरकान पार्लियामेंट मुस्बित पाए गए हैं। इनमें बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, सुरेश रामशंकर, प्रवेश वर्मा शामिल है। शहर निजामाबाद डिवीजन 52 में तरक्याती कामों का हुआ आगाज। 10 लाख रुपयों की लागत मेयर व डिप्टी मेयर ने रखा सीसी रोड का संगे बुनियाद। आज शहर निजामाबाद डिवीजन 52 के मुगलपुरा और कुबा मस्जिद में 10 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया गया, जिसमें मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर अफसा बेग ने सीसी रोड के कामों की संगी बुनियाद रखी। इस मौके पर मेयर ने कामों को जल्द अज जल्द पूरा करते हुए अवाम के मसाइल को हल करने की बात कही। इस मौके पर मजलिसी फ्लो लीडर शकील फाजिल, कॉरपोरेटर मुस्तहसिन अब्दुल मुकीम, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद रफीउद्दीन, अरशद पाशा, शहबाज के अलावा शेख खलील, अब्दुल कय्यूम, शेख शाकिर, सैयद नसीम व दीगर मौजूद थे। डिवीजन नंबर 52 में मस्जिद खुबा के पास सीसी रोड जो 10 लाख रुपए से जो जनरल बजट के में सैंक्शन हुई सो रोड है, मस्जिद खुबा के लिए रोड के लिए सैंक्शन हुआ। शहर निजामाबाद डिवीजन 57 में तरक्याती कामों का 10 लाख रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का किया गया आगाज। शहर निजामाबाद डिवीजन 57 अहमदपुरा में तरक्याती कामों का किया गया आगाज। इस मौके पर मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने 10 लाख की लागत से सीसी ड्राइव का संगे बुनियाद रखा और मुकामी कॉरपोरेटर एजाज हुसैन को मुबारकबाद पेश करते हुए जल्द अज जल्द ड्राइव की तामीरात को मुकम्मल करते हुए अवाम को राहत फराहम करने की बात की गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मजलिसी फ्लो लीडर शकील फाजिल, अली बागबान, मुस्तहसिन, मोहम्मद रफीउद्दीन, मुकीम, अरशद पाशा, शहबाज के अलावा दीगर मौजूद थे। मरीजों को निजामाबाद जिला सरकारी दवाखाने पर RT-PCR टेस्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। बेगाला कनिज गुप्ता। रुकन असम्बली निजामाबाद बेगाला कनिज गुप्ता ने असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान कहा कि जिला सरकारी दवाखाने से मुतालिक अमराज में मुब्तला मरीजों की कसीर तादाद रुजू हो रही है। बिलखुसूस कोरोना मुतासरीन को RT-PCR मुआयने के लिए हैदराबाद रवाना किया जा रहा है। या मुतासरीन के मुआयने की रिपोर्ट हैदराबाद से तलब करने के लिए 2 दिन का वक्त दरकार हो रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। रुकन असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता ने रियासती वजीर सहित एटिला राजेंद्र से ख्वाहिश की कि निजामाबाद जिले सरकारी दवाखाने पर RT-PCR मुआयने की सहूलत फराहम की जाए, जिस पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने तयक़्क़ुन दिया कि रियासती वजीर सहित एटिला राजेंद्र के जरिए जिला सरकारी दवाखाने में मरीजों के लिए RT-PCR मुआयने की सहूलत फराहम की जाएगी। అధ్యక్ష, నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా ఏదైనా వ్యాధులు వస్తే జిల్లా హాస్పిటల్కి వస్తారు అధ్యక్ష. మరి కోవిడ్ విజృంభిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో చాలా ప్రాంతాల్లో ర్యాపిడ్ టెస్టులు చేస్తున్నప్పటికీ RT-PCR టెస్ట్ కావాలంటే శాంపుల్ తీసుకొని హైదరాబాద్ పంపిస్తూ ఉన్నారు. దానికి 3-4 రోజుల సమయం పడుతుంది. కొంతమందికి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది కాబట్టి నిజామాబాద్ నగరంలో RT-PCR టెస్ట్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారిని కోరుతూ, అదేవిధంగా అక్కడ ఐసోలేషన్ వార్డ్ ఏర్పాటు చేశారు, కోవిడ్ సెక్షన్ ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి అక్కడ స్టాఫ్ కొరత కూడా ఉంది. ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి నుంచే అక్కడికి డాక్టర్స్ని కానీ శానిటేషన్ సిబ్బందిని కానీ షిఫ్ట్ చేశారు కాబట్టి కొంత రిక్రూట్మెంట్ కూడా చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के PG के लिए 4th सेमेस्टर्स के अक्टूबर में इम्तिहानात। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तलबा के लिए 4th सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल इम्तिहान अक्टूबर में मुनाकिद किया जाएगा। बारिश के सबब फिर एक बार अक़लियती इलाके मुतासिर। शहर के बोधन रोड पर मौजूद दुकानें हुए मुतासिर। सुबह 11 बजे तक भी शहर झील का मंजर पेश कर रहा था। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से हो रही बारिश के सबब शहर के कई इलाके मुतासर हुए हैं, जिसमें बेशतर अक़लियती इलाके हैं। इन इलाकों का जायज़ा शहर की अहम शाहरा बोधन रोड को देखकर लगाया जा सकता है, जहां राहगीरों को काफ़ी दुश्वारी पेश हो रही थी। वहीं बारिश के सबब इन शाहरा पर मौजूद कारोबारियों पर भी इनका असर दिखाई दिया।
कई शॉप्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब कई शॉप्स मालिकीन ने अपने कारोबार को बंद कर दिया। वाज़ेह है कि 10 से 15 मिनट की बारिश में ये अहम शाहरा समंदर के मानिंद नज़ारा पेश करती है, जिसका अंदाज़ा आज की बारिश से नजर आया। पानी की कमी के सबब जिले के कई देही इलाका खस्ताहाली से दो चार। इन देही इलाकों को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मरबूत करने के लिए निजामाबाद रूरल एमएलए बाजवडी असेंबली इजलास में किया मुतालबा। निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली बाजवडी गोवर्धन ने असेंबली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इनके हलके में मौजूद पानी की सरबराही से मुश्किलात का सामना करने वाले देही इलाकों की निशानदेही करते हुए इन गाँवों को भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मरतूब करते हुए पानी की फराहमी का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वजीर बल्दी नजमुनस ने इन देहातों के मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। अध्यक्ष सर, ఇది కాళేశ్వరం ప్యాకేజీ నెంబర్ 9. ఈ ప్యాకేజీ నెంబర్ 9 మూలావు ప్రాజెక్టు రిజర్వాయర్గా చేసి గౌరవ కేటీఆర్ గారి యొక్క కాన్సెన్స్ ఇది. మరి గతంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసి నేను విజ్ఞప్తి చేయగా వారి పక్కన ఉన్నటువంటి కాన్సెన్స్ పక్కన మా కాన్సెన్స్ కాబట్టి నిజామాబాద్ రూరల్ ఆ టెలెండ్ ఏరియా అది 4 గ్రామాలు ఉంటాయి సార్. అక్కడ ఏ కెనాల్ కానీ చెరువులు కానీ ఏమి లేవు. దయచేసి మూలావు ప్రాజెక్టు ప్యాకేజీ నెంబర్ 9 నుంచి తాట్పల్లి, జిన్గ్యాల, చిమన్పల్లి, పందిమడుగు గ్రామాలకు లిఫ్ట్ పెట్టి నీళ్ళు ఇస్తే బాగుంటుంది నా రిక్వెస్ట్. దాని కొరకు ఈఎన్సీ గారు కూడా, మురళీధర్రావు గారు కూడా దాని ఎస్టిమేషన్ ఫిజిబిలిటీ కూడా తెప్పించుకున్నారు. మరి అమౌంట్ కూడా కొంత ఉందని తెలిసింది నాకు. దయచేసి కేటీఆర్ గారు, గౌరవ కేటీఆర్ గారు వారు ఒక మాట చెప్తే తప్పకుండా పని కూడా స్టార్ట్ అయితే వారితోనే మరి ప్రారంభం చేస్తామని మా అందరి గ్రామాల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి. కాబట్టి దయచేసి నోట్ చేసుకున్నాను చెప్పకుండా దయచేసి కొంచెం వివరంగా చెప్తారని భావిస్తున్నాను. रियासत में डेयरी शोबे को तरक्की दी जाए और हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे विजय मिल्क को भी अमूल मिल्क की तरह तरक्की दी जाए। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया असेंबली इजलास में नुमाइंदगी। आज असेंबली इजलास में वक्त सवाल के मौके पर बात करते हुए पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि डेयरी महकमे को तरक्की देने के लिए नुमाइंदगी की और कहा कि गुजरात में बनने वाला अमूल मिल्क व इसके प्रोडक्ट पूरे मुल्क में फ्राहम किए जा सकते हैं, तो रियासत में तैयार होने वाले विजय मिल्क को हम तरक्की देते हुए पूरे मुल्क में फैलाने के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर मुतालिका वजीर ने भरोसा दिया। పాడి పరిశ్రమ గత పాలకుల విధానాల ఫలితంగా చాలా ఘోరంగా దెబ్బతిన్నది అధ్యక్ష. సీఎం కేసీఆర్, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతు అనుకూల విధానాల ఫలితంగా పాడి పరిశ్రమ మళ్ళీ నిలదొక్కుంటుంది అధ్యక్ష. మరి అట్లాంటి సందర్భంలో గత పాలకులు తమ సొంత పాల డైరీ కోసం, చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ డైరీని పూర్తిగా దివాలా తీసే ప్రయత్నాలు చేశారు అధ్యక్ష. అది తమకు కూడా బాగా తెలుసు అధ్యక్ష. శ్రీనివాస్ గారు విజయ డైరీలో సంస్కరణ తలపిస్తున్నారు అధ్యక్ష. విజయ డైరీ కోసం ప్రత్యేకంగా బ్రాండ్ ఇమేజ్ చేయడానికి ఏమన్నా ప్రత్యేక రూపకల్పన చేస్తున్నారు తమ ద్వారా మంత్రిని అడుగుతా ఉన్న అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గుజరాత్లో పుట్టినటువంటి అమూల్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో దేశవ్యాప్తంగా బ్రాండింగ్ ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా మన విజయ డైరీని కూడా దేశవ్యాప్తంగా మరి తీసుకుపోవడానికి ఏమైనా ప్రత్యేక ఇది అధ్యక్ష. మరి అట్లాంటి సందర్భంలో ప్రతినిత్యం ప్రతి ఇంట్లో పాలు అవసరం ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు నుంచి ప్రతి కుటుంబం వాడుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడిచే విజయ డైరీని మరింత పటిష్టం చేసి ఆ కల్తీ పాలను అరికట్టే విధంగా ప్రభుత్వం ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటుందా? असेंबली इजलास में शिरकत के लिए तमाम अराकीन असेंबली के लिए मास्क व महफूज फासला लाजमी। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। आज असेंबली इजलास के 7वें दिन के आगाज के मौके पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोरोना वबा के मद्देनजर तमाम अराकीन असेंबली व मुलाजमिन को हिदायत जारी करते हुए मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ महफूज फासले को बरकरार रखने के लिए हिदायत दी और खिलाफ वर्जी करने पर बरहमी का इजहार किया। लकी लॉटरी स्कीम के तहत अवाम व हुकूमत को लूटने वालों के खिलाफ महकमा पुलिस की कार्रवाई का आगाज। शहर के फोर्ट टाउन इलाके में ऐसे लक्ष्मैया की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर धावे। अवाम को ख्वाब बताकर लूटने वाले, लकी लॉटरी स्कीम चलाने वाले मालिकीन के खिलाफ अवाम की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज। शहर के फोर्ट टाउन इलाके में मौजूद स्टाइल्ड एज स्मार्ट लाइफ के दफ्तर पर धावा करते हुए इस दुकान के मालिक प्रकाश, जो सूर्यनगर में रहते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर फोर्ट टाउन एसआई लक्ष्मैया ने अवाम से अपील की कि इस तरह की स्कीम की आड़ में ये अफराद करोड़ों का कारोबार करते हुए अवाम और हुकूमत दोनों को लूट रहे हैं। इस तरह की स्कीम से आगाह रहें।
इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। असम्बली इजलास के 7वें दिन कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तमाम अराकीन को मास्क व महफूज फासले पर पाबंदी की दी हिदायत। रियासत में डेयरी शोबे की तरक्की के लिए पीओसी कमेटी चेयरमैन व आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी ने की असम्बली इजलास में नुमाइंदगी। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार और यही तहजीब तेलंगाना की है। जंगमपेट में मस्जिद की तामीर अशार की जानिब से रोकने पर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लईक खान की जानिब से बोलन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात पर रुकन असम्बली ने दिया जवाब, ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल अमले की कमी को दूर करने व कोरोना मरीजों के लिए खानगी हॉस्पिटल्स की तर्ज पर सहूलियात फराहम करने के लिए निजामाबाद रुकन असम्बली बेगाला कनिज गुप्ता ने की असम्बली इजलास में नुमाइंदगी। निजामाबाद को मिसाली शहर बनाने के लिए रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता कोशा, मेयर निधु किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रखा तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।